Good morning, students. So in this class, we are starting a new chapter which is related to a civics portion, and the chapter name is on equality. So before starting a chapter, we have to revise that what do you mean by democracy? डेमोक्रेसी क्या है, इसकी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम पहले कर लेते हैं. So democracy is derived from two Greek words. First is demos and the second one is kratos. Demos means people and kratos means government. So we can say that the government which is run by the people is known as democracy. Now, democracy is the government of the people, by the people and for the people. Democracy एक ऐसी government है जो लोगों के लिए, लोगों से और लोगों के द्वारा है. Now we'll move forward to a topic that is equality. Equality means the situation in which everyone has the same rights and advantages. What do you mean by equality? तो इक्वालिटी वो सिचुएशन है जहाँ पर सभी लोग बराबर स्थान रखते हैं, हर इंसान के पास सेम राइट्स एंड सेम एडवांटेजेस होते हैं. एग्जांपल हम ले लेते हैं दो छोटे बच्चों का, एक बॉय एंड एक गर्ल. अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो सेम गर्ल के लिए भी होगी, सेम राइट्स एंड एडवांटेजेस फॉर गर्ल एंड सेम राइट एंड एडवांटेजेस फॉर द बॉय ऑल्सो. Now we will move forward to our next slide that shows that Indian Constitution guarantees equality. Indian Constitution में किन किन प्रकार की equality दर्शाई गई है. Now the equality is in between rich and poor, high caste and low caste, genders, educated and illiterate and working class and owners. Indian Constitution में इन सभी को समान माना गया है, किसी भी एक को किसी एक कंडीशन में प्रिविलेज नहीं दी गई है. जहाँ पर रिच को जितने राइट्स एंड गारंटीज़ मिलेंगे उतने ही पुअर के पास भी उतने ही राइट्स एंड गारंटीज़ हैं. हाई कास्ट एंड लो कास्ट के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा. जेंडर्स को इक्वल माना जाएगा. एजुकेट एंड इलिटरेट एंड वर्किंग क्लास एंड ओनर्स के बीच में भी इक्वालिटी होगी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल राइट टू वोट. Every adult citizen of India has a right to vote irrespective of his or her economic status, religion, caste or education. In India, every adult citizen. Now what do you mean by adult citizen? Adult citizen means who is of 18 years and above. जो 18 years के हो चुके हैं या फिर 18 years से ऊपर हैं, उन सभी को इंडिया में right to vote का अधिकार है. So now, every adult citizen of India has a right to vote irrespective of his or her economic status, religion, caste और education. यहाँ पर इन इंडिया सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं वोट कास्ट करने के. ऐसा नहीं है कि हमने किसी मेल को दे दिए हैं तो हम किसी फीमेल को नहीं देंगे, हमने किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को वोट करने का राइट दिया हुआ है, या फिर हमने एक पर्टिकुलर रीजन के और रिलीजन के लोगों को वोट कास्ट करने का राइट दिया है. यहाँ पर इंडिया में डेमोक्रेसी है एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल. सो एवरी एडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू वोट. Now, this is known as universal adult franchise, that in India, everybody can cast his or her vote irrespective of his or her economic status, religion, caste और education. And the voting rights उनको किस एज पे मिलते हैं? Of 18 and above 18 years. Now we will move forward to a next slide that is an example of equality. Now, here we can see the picture of Rama Devi. Rama Devi, who is a domestic help in the house of Ramesh Ahuja. Now, we can move forward to our next slide to understand this topic again. Now, in this topic, we can see that there is a queue. So now, on the election day, she goes to the polling booth in the morning and stands इन अ लॉन्ग क्यू. एक सुबह जब वो वोट देने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए जाती है, तो वो रमेश आहूजा एंड उनकी जो सर्वेंट हैं रमा देवी बोथ स्टैंड इन अ क्यू. नाउ यहाँ पर नया टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट. लेट्स डिस्कस दिस. ना बोथ
master and servant can cast his or her vote. According to this line, both master and servant, master means Ramesh Ahuja and servant means Rama Devi, both can cast his or her vote. दोनों के पास सेम राइट्स हैं, दोनों वोट कास्ट कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, both are equal no matter if one is rich and the other is poor. Now here Rama Devi is poor and Ramesh Ahuja is rich, but यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये बात मैटर ही नहीं करती है, दोनों ही यहाँ पर समान है, both are equal. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता who is rich or who is poor. Now the next point, both have one vote each no matter if one is male and the other is female. यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाया गया है. यहाँ पर दोनों के पास एक एक वोट है, मेल के पास भी एक वोट है एंड फीमेल के पास भी एक वोट है. न कि रमा देवी 2 वोट कास्ट कर सकती हैं, न ही रमेश आहूजा 2 वोट, दोनों के पास एक एक वोट है एंड वो उसे कास्ट करेंगे. लास्ट पॉइंट, बोथ आर इक्वल एज बोथ ऑफ देम हैव टू स्टैंड इन अ क्यू एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम एंड वेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टर्न्स. यहाँ पर इक्वालिटी इस तरीके से दर्शाई गई है कि सभी एक क्यू में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं. किसी को ये प्रिविलेज नहीं दी गई है कि वो लाइन को तोड़कर आगे आए, अपना वोट कास्ट करे एंड चला जाए. एक लाइन में खड़े होकर आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कास्ट योर वोट. नाउ इन दिस point or in this topic we have learned that what do you mean by equal right to vote. Now we will move forward to a next slide. Now in this page or in this diagram we can see the economic disparity between Rama Devi and Ramesh Ahuja. In this diagram we can see that Rama Devi is standing in another queue with her sick daughter. This time round she is waiting to show her sick daughter to a doctor in a government hospital. रमा देवी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती हैं, वहाँ पर वो अपनी सिक डॉटर को दिखाने के लिए एक लंबी लाइन में खड़ी होती हैं. पर अगर उनके पास प्रिविलेज होती, मींस एक सफिशेंट अमाउंट में मनी होता, तो वो अपने ओनर रमेश आहूजा की तरह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकती थी, बिना लाइन में लगे हुए पर्सनली डॉक्टर को दिखा सकती थी अपनी डॉटर को, एंड अदरवाइज़ वो डॉक्टर को अपने घर पे बुला सकती थी. तो यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को हम शुरू कर सकते हैं. द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन अ सर्वेंट एंड अ ओनर एंड बिटवीन अ ओनर. Now here's a diagram. यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों का है, ये झुग्गी झोपड़ियों को शो किया गया है वहाँ पे बिल्डिंग्स को. सो वी कैन सी दैट द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर. Now in the next slide we are distinguishing between Ramesh Ahuja and Rama Devi in some conditions. First condition is occupation. Occupation, Ramesh Ahuja he is a businessman and Rama Devi domestic servant है. किसके घर में? इन रमेश आहूजाज हाउस. सो दोनों के ऑक्यूपेशन में बहुत डिफरेंस है. वो बिजनेसमैन है, वो उनके घर में काम करती हैं एंड वो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं उनके वर्क के लिए. नेक्स्ट इज हाउस. बिग एंड क्लीन, स्मॉल एंड डिंगी. रमेश आहूजाज हाउस इज़ बिग एंड क्लीन एंड वहीं पर रमा देवी का हाउस स्मॉल एंड डिंगी है. वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन इन दिस डायग्राम. यहाँ पर रमा देवी का हाउस है एंड यहाँ पर रमेश आहूजा का हाउस है. सो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है. यहाँ पर हाउसेस क्लीन है एंड यहाँ पर डर्टी हैं. नाउ सराउंडिंग्स. रमेश आहूजा सराउंडिंग इज ओपन, क्लीन स्पेस एंड अ पार्क एंड रमा देवी सराउंडिंग इज डर्टी, फिल्दी, ड्रेन नियर हर हाउस. क्लियर इन दिस पिक्चर. यहाँ पर गंदगी है एंड यहाँ पर साफ़ सफाई है, पार्क है, खुला इलाका है एंड यहाँ पर गंदगी है. स्टेटस. द स्टेटस सिंबल ऑफ रमेश आहूजा इज़ रिच एंड रमा देवी पुअर. दोनों में स्टेटस सिंबल को लेकर एक डिफरेंस यहाँ पर शो किया गया है. रमेश आहूजा रिच हैं एंड रमा देवी पुअर है. तो यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दिखा रहे हैं. इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव शोन द इक्वल राइट टू वोट. तो इस एक ही देश में बहुत सारी तरीके की डिस्पैरिटीज़ भी हैं, समानताएं भी हैं. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी.